Welcome to VLearn. This is session number 2 on network management. Today we will discuss about the firewalls. So the topics we are going to cover in this session are introduction to firewalls, then firewall components, then network policy, advanced authentication, then types of firewalls, then packet filtering, then next there will be which protocols to filter, then application gateways, stateful inspection, circuit relay, then there will be VPNs. Inside the VPNs there will be VPN architecture, then there will be VPN technology, then types of VPN tunneling protocols, then there will be access control list, then inside the access control list there will be ACL based security models, then there will be SOCs, Cisco PICS terminology and background information, then how Cisco IT migrated to stronger firewall protection for large sites. So, firewalls. A firewall is not simply a router, host system or collection of systems that provides security to a network. Firewall सिर्फ जो है एक राउटर की टाइप से नहीं काम कर रहा, देन होस्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है और कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ए नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क को जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. रादर ए फायरवॉल इज एन अप्रोच टू सिक्योरिटी. इट हेल्प्स इंप्लीमेंट ए लार्जर सिक्योरिटी पॉलिसी दैट डिफाइंस द सर्विसेज एंड एक्सेस टू बी permitted. It is an implementation of that policy in terms of a network configuration, one or more host systems and routers, and other security measures such as advanced authentication in place of static passwords. ये क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज की. किस टर्म्स में? नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के टाइप्स में. देन इसमें क्या होता है, वन और मोर होस्ट सिस्टम्स एंड राउटर्स एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स सच एज एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन इन प्लेस ऑफ स्टैटिक पासवर्ड्स जो है इसमें इम्प्लीमेंट होता है. द मेन पर्पज ऑफ फायरवॉल सिस्टम इज टू कंट्रोल एक्सेस टू फ्रॉम और ए प्रोटेक्टेड नेटवर्क. It implements a network access policy by forcing connections to pass through the firewall where they can be examined and evaluated. A firewall system can be a router. Firewall system जो है एक router हो सकता है. Then a personal computer हो सकता है. A host और a collection of host होता है. Set up specifically to shield a site or subnet from protocols and services that can be abused from hosts outside the subnet. So, a firewall system is usually located at a higher level gateway. जो firewall जो होता है जनरली हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे होता है, हायर लेवल गेटवे पे होता है, such as sites connection to the internet. However, firewall system can be located at lower level gateways to provide protection for some smaller collection of hosts or subnets. The main function of a firewall is to centralize access control. जो इसका मेन फंक्शन क्या है firewall का, centralized access control होता है. A firewall serves as a gatekeeper between the untreated internet and the more trusted internet networks. Firewall क्या करता है, सर्व करता है as a gatekeeper between the untreated internet and the more trusted internal networks के बीच में. Then, if outsiders or remote users can access the internal networks without going through the firewall, its effectiveness is diluted. So, हम लोग ये कह सकते हैं अगर इन केस आउटसाइडर्स और रिमोट यूजर्स इंटरनल नेटवर्क को जो है एक्सेस कर सकते हैं और ये बिना फायरवॉल के ऑथेंटिकेशन के हो रहा है, देन इट मीन्स कि इसकी जो इफेक्टिवनेस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ट्रैवलिंग मैनेजर हैज ए मॉडर्न कनेक्टेड टू हिज ऑफिस पीसी दैट ही और शी कैन डायल इनटू व्हाइल ट्रैवलिंग. जैसे कि हम लोग एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, एक ट्रैवलिंग मैनेजर है, उसके पास में मॉडम है जो कि कनेक्टेड है ऑफिस पीसी के साथ में. देन क्या कर रहा है, ही और शी कैन डायल इनटू व्हाइल ट्रैवलिंग. देन ये वो जो है इधर उधर अगर इनकेस हैं तब भी वो उसको जो है डायल कर सकते हैं. एंड दैट पीसी इज आल्सो ऑन द प्रोटेक्टेड इंटरनल नेटवर्क. एन अटैकर हु कैन डायल इनटू दैट पीसी हैज सर्कमवेंटेड द फायरवॉल. अगर इनकेस कोई पर्सन उसको जो है डायल कर रहा है, कोई अदर पर्सन जो अटैकर है, देन क्या है वो क्या कर रहा है, इट मीन्स कि वो जो है हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहा है. सिमिलरली, if a user has a dial-up internet account with a commercial ISP,
and sometimes connects to the internet from their office PC via modem. Then similarly क्या है, अगर इन केस कोई यूजर है वो क्या करता है, डायल अप इंटरनेट का अकाउंट है उसके पास में विद ए कमर्शियल ISP है, एंड समटाइम्स कनेक्ट्स टू द इंटरनेट फ्रॉम देयर ऑफिस PC वाया मॉडेम. इवन के क्या करता है, ऑफिस के PC के साथ में कनेक्ट होता है. He or she is opening an unsecured connection to the internet that circumvents the firewall. So what is being protected by firewalls? अब क्या क्या इसके थ्रू प्रोटेक्शन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया योर डाटा. अब डाटा में किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, किस टाइप की प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है. सीक्रेसी, व्हाट अदर्स शुड नॉट नो. इंटेग्रिटी, व्हाट अदर्स शुड नॉट चेंज. अवेलेबिलिटी, योर एबिलिटी टू यूज योर ओन सिस्टम्स. देन योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या, योर सिस्टम्स एंड देयर कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज. सो इस टाइप के जो है यहाँ पे क्या किस टाइप की प्रोटेक्शन दे रहा है, डाटा में, जिसमें कि ये सीक्रेसी मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. देन रिसोर्सेज में क्या करता है, जितनी भी हमारे सिस्टम्स होते हैं उनकी जो है कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज है उसके लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. देन नेक्स्ट कम्स योर रेपुटेशन. इवन कि ये रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करता है. कैसे करता है, कॉन्फिडेंस इज शेकन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, इज शेकन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. देन योर साइट कैन बी यूज्ड एज ए लॉन्चिंग पॉइंट फॉर क्राइम. देन क्या है, हमारी जो साइट है इसको लॉन्चिंग पॉइंट ऑफ क्राइम के लिए भी यूज हो सकता है. सो यू मे बी यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन साइट फॉर अनवांटेड डाटा. आपको जो है अनवांटेड डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. देन यू मे बी यूज्ड बाय इम्पोस्टर्स टू कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स. इवन की सीरियस प्रॉब्लम्स ना हो उसकी भी प्रोटेक्शन ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है. देन यू मे बी व्यूड एज अनट्रीटेड बाय कस्टमर्स एंड पीयर्स. सो इस बेस पे जो है इन सब पॉइंट्स के बेस पे हम लोगों को ये जो रेपुटेशन जो है हमारी मेंटेन करके रखता है. देन फायरवॉल कंपोनेंट्स. फायरवॉल कैन बी कंपोज्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मोस्ट कॉमनली बोथ. जो फायरवॉल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, या तो सॉफ्टवेयर के लेवल पे भी होते हैं, हार्डवेयर के लेवल, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं, और इवन की जनरली हम लोग देखते हैं ये बोथ लेवल पे भी होते हैं. देन द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कैन बी इधर प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर और फ्रीवेयर. जो भी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, मींस जो फायरवॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, ये क्या प्रोप्राइटरी हो सकते हैं, शेयरवेयर हो सकते हैं या फिर फ्रीवेयर हो सकते हैं. देन द हार्डवेयर कैन बी एनी हार्डवेयर दैट सपोर्ट्स द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड. जो हार्डवेयर है वो किसी टाइप का भी हो सकता है जो कि दैट सपोर्ट्स द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड. जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उसको वो सपोर्ट करता है. इफ हार्डवेयर, इफ फायरवॉल कैन एंड ऑफन डज कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन ए राउटर. जो हार्डवेयर है ए फायरवॉल कैन एंड ऑफन डज कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन ए राउटर. स्पूफिंग अटैक्स, जैसे कि राउटर्स हैव एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटी टू स्क्रीन IP एड्रेसेस. सो ये जो राउटर्स हैं देन ये क्या करते हैं, सो इफ हार्डवेयर फायरवॉल कैन एंड ऑफन डज कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन ए राउटर. स्पूफिंग अटैक्स, राउटर्स हैव एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटी टू स्क्रीन IP addresses. Then this screening process allows you to define which IP addresses are allowed to connect and which are not. So ये जो screening process है ये क्या करता है, allow करता है you to define which IP addresses are allowed to connect and which are not. जो उनसे कनेक्ट करने के लिए अलाउड हैं उनको अलाउ किया, जो उनसे नहीं अलाउड हैं उनको डिसअलाउ किया. अदर इम्प्लीमेंटेशंस कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो ये जो इम्प्लीमेंटेशंस है इसमें क्या है, दीज कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो इन एनी इवेंट all firewalls share a common attribute, the capability to discriminate or the capability to deny access generally based on the source address. इसमें क्या हो सकता है, फायरवॉल्स में जिसको डिनाई करना है एक्सेस उसको हम लोग डिनाई कर सकते हैं, जिसको अलाउ करना है उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं. सो द प्राइमरी कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ ए फायरवॉल्स आर नेटवर्क पॉलिसी. जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं फायरवॉल के वो कौन से हो सकते हैं, नेटवर्क पॉलिसी हो सकता है. देन एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो सकता है, पैकेट फिल्टरिंग एंड एप्लीकेशन गेटवेज हो सकते हैं. सो नेक्स्ट कम्स नेटवर्क पॉलिसी. देयर आर 2 levels of network policy that directly influence the design, installation and use of a firewall system. अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं. फर्स्ट वन कम्स सर्विस एक्सेस पॉलिसी. सर्विस एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है, द सर्विस एक्सेस पॉलिसी शुड फोकस ऑन इंटरनेट स्पेसिफिक यूज इश्यूज as defined above and perhaps
ऑल आउटसाइड नेटवर्क एक्सेस। जो सर्विस एक्सेस पॉलिसी क्या करनी चाहिए, शुड फोकस ऑन इंटरनेट स्पेसिफिक यूज, जो भी इंटरनेट स्पेसिफिक यूज हो रहा है उसके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए, एज डिफाइंड अबव एंड परहैप्स ऑल आउटसाइड नेटवर्क एक्सेस, दैट इज डायल इन पॉलिसी एंड स्लिप एंड ट्रिपल पी कनेक्शंस एज वेल। सो नेटवर्क पॉलिसी कंटिन्यू। फायरवॉल डिजाइन पॉलिसी। The firewall design policy is a specific to firewall. It defines the rules used to implement the service access policy. Firewall design policy क्या है, specific to the firewall ये होता है. Then it defines the rules used to implement the service access policy. Firewalls generally implement one of two basic design policies. वो कौन से हो सकते हैं? Permit any service unless it is expressively denied. Deny any service unless it is expressively permitted. Then next comes advanced authentication. इसमें क्या है, for years users have been advised to choose passwords that would be difficult to guess and to not reveal their passwords. सालों से ये क्या हो रहा है, जो यूजर्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि जो उनके पासवर्ड्स हैं डिफिकल्ट होने चाहिए ताकि कोई अननोन पर्सन उसको जो है गेस ना करे और वो रिवील ना कर सके. However, even if users follow this advice and many do not, the fact that intruders can and do monitor the internet and passwords that are transmitted in the clear has rendered traditional passwords obsolete. तो ये क्या हो सकता है, इंट्रूडर क्या कर सकते हैं, जो हमारे वीक पासवर्ड्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. सो एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन मेजर्स सच एज स्मार्ट कार्ड्स, ऑथेंटिकेशन टोकन्स, बायोमेट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म्स आर डिजाइन्ड टू काउंटर द weaknesses of traditional passwords. Advanced authentication. While the authentication techniques vary, they are similar in that the passwords generated by the advanced authentication devices cannot be reused by an attacker who has monitored a connection. जब authentication होती है, techniques हम लोग देखते हैं ये vary करती हैं. They are similar in that the passwords generated by the advanced authentication devices can't be reused by an attacker who has monitored a connection. Given the inherent problems with passwords on the internet, an internet accessible firewall that doesn't use or does not contain the hooks to use advanced authentication makes little sense. So next comes types of firewalls. Firewalls की कितनी types होती हैं? First comes packet filtering. IP packet filtering is done usually using a packet filtering router designed for filtering packets as they pass between the router's interfaces. जो पैकेट फिल्टरिंग है ये डन होता है, ये वर्क करता है जिसके थ्रू यूजली यूजिंग ए पैकेट फिल्टरिंग राउटर डिजाइन, जो उनसा भी डिजाइन होता है फिल्टरिंग के लिए, पैकेट्स की फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, उसके थ्रू हम लोग करते हैं एज दे पास बिटवीन द राउटर्स इंटरफेस. क्योंकि जो हम लोग देखते हैं ये क्या करते हैं, राउटर्स के इंटरफेसेस के बिटवीन से ये पास आउट होते हैं. ए पैकेट फिल्टरिंग राउटर यूजली कैन फिल्टर आईपी पैकेट्स बेस्ड ऑन सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. कौन से हो सकते हैं, source IP address, destination IP address, TCP UDP source port and TCP UDP destination port. Advantages of packet filtering. One screening router can help protect an entire network. Packet filtering doesn't require user knowledge or cooperation. Packet filtering is widely available in many routers. So ये advantages हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं एक स्क्रीनिंग राउटर क्या कर सकता है, कैन हेल्प प्रोटेक्ट एन एंटायर नेटवर्क, पूरा के पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्शन दे सकता है. देन पैकेट फिल्टरिंग डजंट रिक्वायर यूजर नॉलेज और कॉपरेशन, इसके लिए जो है यूजर की नॉलेज और कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि पैकेट जो ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर के मूव कर रहे होते हैं. पैकेट फिल्टरिंग इज वाइडली अवेलेबल इन मैनी राउटर्स. जो पैकेट फिल्टरिंग है जनरली हम लोग देखते हैं बहुत सारे राउटर्स के अंदर अवेलेबल होता है. नेक्स्ट कम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेट फिल्टरिंग. अब नेचुरली जैसे कि उसके एडवांटेजेस हैं सेम वैसे इसके डिसएडवांटेजेस में हैं. सो करंट फिल्टरिंग टूल्स आर नॉट परफेक्ट, जो इसकी फिल्टरिंग टूल्स हैं वो परफेक्ट नहीं है. देन सम प्रोटोकॉल्स आर नॉट वेल सूटेड टू पैकेट फिल्टरिंग. कुछ एक इसमें ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि पैकेट फिल्टरिंग के 100% कंपैटिबल नहीं है, सूटेड नहीं है. सम पॉलिसीज कांट रेडली बी एनफोर्स्ड बाय नॉर्मल पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स. कुछ एक पॉलिसीज हैं जो कि कांट रेडली बी एनफोर्स्ड बाय नॉर्मल पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स. Which protocols to filter? कौन से protocols filter होने चाहिए? The decision to filter certain protocols and fields depends on the network access policy. जो decision होता है filtration के लिए certain protocols का and fields
ये क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी, जोन सी भी नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. दैट इज विच सिस्टम्स शुड हैव इंटरनेट एक्सेस एंड द टाइप ऑफ एक्सेस टू परमिट, विच प्रोटोकॉल्स शुड बी अनेबल्ड और विच शुड बी डिसेबल्ड. कौन से प्रोटोकॉल्स अनेबल होने चाहिए और कौन से डिसेबल होने चाहिए. सो एप्लीकेशन गेटवेज टू काउंटर सम ऑफ द वीकनेसेस एसोसिएटेड विद पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स. क्या करना चाहिए, टू काउंटर सम ऑफ द वीकनेसेस associated with packet filtering routers, firewalls need to use software applications to forward and filter connections for services such as telnet and ftp. क्या है, काउंटर करने के लिए कौन सी वीकनेसेस के लिए जो कि एसोसिएटेड होते हैं पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स में, फायरवॉल्स में जनरली जो हम लोग देखते हैं. इट्स नीड टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू फॉरवर्ड एंड फिल्टर कनेक्शंस फॉर सर्विसेज एज टेलनेट एंड एफटीपी, क्योंकि टेलनेट और एफटीपी हम लोग को यूज करना पड़ता है और ये इतने सिक्योर नहीं है. और देन such an application is referred to as a proxy service while the host running the proxy service is referred to as an application gateway. So ये जो proxy की जो सर्विस है इसको हम लोग application gateway के नाम से भी रेफर करते हैं. Application gateways and packet filtering routers can be combined to provide higher levels of security and flexibility that if either were used alone. अगर इनके हम लोग देखते हैं जो application gateways हैं, पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, कैन बी कंबाइंड टू प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि अगर इनके हम लोग को दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है देन उन दोनों के कंपैटिबल ये हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी है. फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, देन इफ ईदर वर यूज अलोन, अगर इनके हम लोगों ने जो है इसको अलग से अलग यूज करना है देन ये भी पॉसिबल है. एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, consider a site that blocks all incoming telnet and FTP connections using a packet filtering router. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि एक साइट है जो कि ब्लॉक करती है सारे के सारे टेलनेट और FTP कलेक्शंस को, जो भी इनकमिंग है पैकेट फिल्टरिंग राउटर के थ्रू हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं. Then the router allows telnet and FTP packets to go to one host only. वो क्या कर रहा है, देन टेलनेट और FTP पैकेट सिर्फ एक ही होस्ट मशीन के लिए अलाउ कर रहा है, द टेलनेट FTP एप्लीकेशन गेटवे, जिसको कि हम लोग जो है टेलनेट एफटीपी एप्लीकेशन गेटवे के नाम से कॉल कर सकते हैं. देन ए यूजर हु विशेस टू कनेक्ट इनबाउंड टू ए साइट सिस्टम वुड हैव टू कनेक्ट फर्स्ट टू द एप्लीकेशन गेटवे. एक यूजर जो कि विश करता है टू कनेक्ट इनबाउंड टू ए साइट सिस्टम वुड हैव टू कनेक्ट फर्स्ट टू द एप्लीकेशन गेटवे एंड देन टू द डेस्टिनेशन होस्ट. सो नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेस. In the exercises the questions are what is application gateways, then next question is what is packet filtering, then next question is what are components of firewall. As we have discussed all these things in this session in the detail, so now it's very easy for us to do these exercises. Happy learning, we learning.